एमास 60 बैच। आवाज नहीं आ रही? पंखे 2 मिनट के लिए बंद है। अभी एसीज को सर्विसिंग कराएंगे। अनफॉर्चुनेटली सैटरडे को आ रहा है तो आपको 2-4 दिन पंखों के साथ डील करना पड़ेगा। तो अगले बैच में तो एसी चलते चलेंगे बस, अदरवाइज आवाज नहीं जाती पीछे तक। Okay, can you hear me now? Yes, sir. So, Jai Hind everyone. Today I have with me a tall boy, Mantavya Sharma. I think he's taller than me. And he is from EMAS 60 batch. He is from Jaipur, NCC cadet who went for NCC entry and cleared his SSB on 23rd December 2023 in his first attempt. So that's very incredible that is a dream for everyone, but then of course those of you who work hard can achieve that dream. So EMAS joins OTA Chennai on 28th March. He's already in the merit list is 31. So he joins on 28th March. He's already got his joining letter and his name is there on the board at serial number 806. That board is not there. That board is under print. Okay. So 806, he remembers the serial number. Most of the EMAS students do remember. So you should also remember your serial number once it reaches the board. But to reach the board, you have to work hard. Sincerely. Okay. And and he's also brought a lot of sweets for you guys. And ये सब कर्जा आपके ऊपर 3-4 किलो का कर्जा आ चुका है इस बैच के ऊपर. तो आपने बैच से भेजना इंसिडेंटली 60 बैच से बहुत क्लियर है, बहुत almost I think 20-25 students have played from 60 batch. So I hope that this batch also gives us, if not better, at least equal result. Yes, sir. Okay. So I'll first present the tie and the cup to Mantavya, and thereafter seek his advice to you guys how you should go about preparing. Because as the batch is coming to an end, whatever my personal interactions are, most of the questions are related to how we should prepare now, after we leave EMAS and up to the SSB. That is something which is now started bothering you. Earlier you are bothered about sleep, now you are bothered about how to prepare in the coming time. So we'll ask Mantavya also, he also had 1 month. And also don't worry, on the last or second last day, I'll give you some special tips how you should carry forward your daily routine. But before we do that, let me first felicitate Mantavya. How was your experience being a fresher at SSB, and how did you prepare? Like everybody is thinking how they should prepare for SSB. That was the first attempt, the golden attempt. So what was your line of preparation? How many are freshers here? तो भाई फ्रेशर अटेम्प्ट आपका गोल्डन चांस रहेगा. ऑब्वियसली सर ने बताया जो करेक्ट चीज़ है, और आपने जो यहाँ पे प्रिपेयर किया है वो मोर देन इनफ है. आप मतलब मैं गया वहाँ पे एज अ फ्रेशर, तो जो रिपीटर्स के पास जो कॉन्फिडेंस होता है उस कॉन्फिडेंस के साथ गया था एज अ फ्रेशर. अंदर जाकर मैं बाहर से ऐसे सोचता था कि मेरे को बस स्क्रीन इन होना है. स्क्रीन इन हुए बाद मेरी प्रिपरेशन इतनी अच्छी है कि मैं देख लूँगा जो होगा अंदर, आई कैन डू वेल. तो जो हमारे रिपीटर्स जो ग्रुप था वो लोग तक मेरे साथ में आके हमारे से बात करते थे कि तुमने कहाँ से प्रिपेयर किया है, तुम्हारे को और जीके वगैरह ये सब चीज़ें जो सर पढ़ाते हैं यहाँ पे, आपको इन डेप्थ नॉलेज होती है हर चीज़ की, मिलिट्री नॉलेज वगैरह. तो वो चीज़ वो कई बार हमारे से आके एज अ फ्रेशर मेरे से पूछते थे हमारे रिपीटर्स कि आपको इस चीज़ का जवाब दीजिए, इस चीज़ का मिलिट्री के रिगार्डिंग इस चीज़ का जवाब दीजिए कि कौन सी कोर, कौन से डिव, कैसे कैसे स्ट्रक्चर वगैरह ये सब चीज़ें. तो आपकी नॉलेज आपके बहुत काम आने वाली है इसमें. और फ्रेशर अटेम्प्ट में कॉन्फिडेंस आप लेके जाओगे. तो लोग ऐसे कहते हैं ज़्यादातर कि अपना जो फ्रेशर इंटरव्यू होता है इट रिवॉल्व्स अराउंड PIQ ओनली, योर PIQ ओनली. बट फॉर मी इट वाज लाइक he asked me my PIQ also, military knowledge also, national, international news, everything he asked me. Everything he asked me. So watch out. And sir, national news, and some cases they have even asked, tell me news per continent, continent-wise news. So you should prepare for it. yes sir. So in PIQ sir, he grilled me very much on friends and family part. He asked me about the examples of the
characters of my friends and everything. Like sir, if I have given some qualities of my friend, we both possess together. He has some situation, give me some situation, you both have shown the characters and the qualities all together. तो सर वो आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन होते हैं उस टाइम पे. तो सर उस टाइम पे आपका नॉलेज कहाँ आएगा आपके. जैसे मैं उस टाइम पे बैठा था इंटरव्यू में, तो मेरा एकदम से मोरल डाउन हो गया ऐसे क्वेश्चंस के बाद में कि अपना इंटरव्यू बिगड़ गया, ऐसा सोचा मैंने. तो उसके बाद मैंने सोचा चलो कोई नहीं, कॉन्फिडेंस हाई रखते हैं सर ऐसा. फिर वो जैसे ही मिलिट्री नॉलेज पे आए, तो हमारे को मिलिट्री नॉलेज इतना अच्छा करवा रखा था, जीके इतना अच्छा करवा रखा था. फिर उसके बाद में आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड हुए हैं करंट अफेयर्स, और काफ़ी बुकलेट दी होगी सर ने, उसको थोड़ा पढ़ लेना, मिसाइल्स वगैरह के बारे में, गन्स वगैरह के बारे में, राइफल्स वगैरह के बारे में. मैं एनसीसी एंट्री था, तो हमसे तो एक्सपेक्ट करते ही हैं जो एनसीसी वाले लोग हैं यहाँ पे, चाहे आप रिटर्न से भी जा रहे हो, आपके पास अगर एनसीसी आपने करी है तो आपसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको इतना तो आना चाहिए मिलिट्री के बारे में एटलीस्ट. बाकी जैसे सर आपको मैंने ऑनलाइन इंटरव्यू में बताया था सर, मिलिट्री नॉलेज में उतना डीप चले गए थे कि मेरे से रिबन्स तक पूछे थे कि हम उन पे चले गए थे. ब्रिगेडियर सौरभ सिंह शेखावत सर, सबने नाम सुना होगा उनका. तो मैंने उनको बोला था शौर्य चक्र अवार्डी, उन्होंने पूछा था. मैंने एक बताए थे मेरे नोन है उनके लिए बताया था, तो उन्होंने कहा टेल मी अनदर वन. तो मैंने सौरभ सर का नाम लिया, तो उन्होंने कहा कि तुम उनकी सारी डेकोरेशन मुझे सीनियरिटी वाइज बताओ. तो उनकी सारी डेकोरेशन मैंने उनको सीनियरिटी वाइज बताई. फिर वो एवीएसएम वीएसएम पे आ गए, कहते वीएसएम किसको मिलता है, एवीएसएम किसको मिलता है, बीवीएसएम किसको मिलता है, फर्क क्या है इन चीज़ों के बारे में. फिर भूल जाएंगे. हाँ सर एग्जैक्टली. और सर जैसे हमने बीएसएम वगैरह सुनते तो हमने मैक्सिमम सीनियर ऑफिसर्स के साथ नहीं देखी वो चीज़ आगे लगी. तो उन्होंने मेरे से एक सीधा डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा कि तो तुम्हें क्या लगता है बीएसएम से सीनियर ऑफिसर्स को मिलता है. तो मैंने डायरेक्टली कह दिया नहीं, क्योंकि सर एक हमारे पास एग्जाम्पल है, हमारा सुबेदार जो है हमारे नीरज चोपड़ा जी, उनके पास में भी है विशेष सेवा मेडल. और उन्होंने पूछा कि और एग्जाम्पल दो, तो एक मेजर करके हैं हमारे सुरेंद्र पूनिया सर, इफ यू नो गाइस, वो है पैरामेडिक हैं. उनका भी एग्जाम्पल लिया मैंने कि उनके पास भी बीएसएम है. तो इट्स नॉट दैट कि सिर्फ आपको सीनियर ऑफिसर्स को मिलेगा वो मेडल. तो सर वो कहीं ना कहीं मेरी वो वाली चीज़ मेरे को उधर से इंटरव्यू से निकाल के ले गई, जो मेरा थोड़ा बहुत दिल वगैरह हुआ था. फिर सर मैंने बैरक में जाके पूछा सर जीटीओ. तो सर आप जितना सर डेटा डायरी मेरे पास में थी. डेटा डायरी की वजह से ही, जैसे सर जीडी की बात करते हैं हम, तो डेटा डायरी में हम बैठे हैं, हमारा पूरा ग्रुप बैठा है, एवरीवन विल स्पीक, बस आपकी सिर्फ जब सुनेंगे जब आप डेटा और एग्जांपल दोगे जो सर बताते हैं. तो सर जैसे ही मैं बोलता था, अगर कोई डेटा के साथ एग्जांपल के साथ बोल रहा हूँ, तो सब चुपचाप सुनने लग जाते थे. और सर डेटा और आप एग्जांपल दोगे तो ऑब्वियसली आपका चेस्ट नंबर बोला जाएगा बार बार कि आई एग्री विद चेस्ट नंबर 17, आई एग्री विद चेस्ट नंबर 17 ऐसे सर. तो उस वजह से सर जीडी का इम्पैक्ट आपका काफ़ी अच्छा खासा हो जाता है. सिर्फ थ्योरी तो सर कोई भी बोल सकता है वहाँ पे जाके, कोई भी बना देगा सर, पर जब आप नंबर्स दोगे तो एग्जांपल्स दोगे तो लोग आपकी सुनेंगे. ऐसा ही आपका डेटा डायरी आपको पूरी हेल्प कर देगी. और मेरा जैसे आफ्टर द एमास आई गॉट 1 month टू प्रिपेयर. सर रेफरेंस आप सर हमको यहाँ पे सर आपकी जो वॉल्यूम 2 वाली बुक है वो हमारे को एट द एंड ऑप्शन मिल गया था परचेज करने का. तो आप लोगों को जो प्रैक्टिस कराई है वो वैसा ही है उसके अंदर, पर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस का और सेट्स मिलेंगे, एक्स्ट्रा स्टोरीज, आइडियाज, हर तरीके की चीज़ आपको वॉल्यूम 2 की बुक में मिल जाएगी. तो वॉल्यूम 2 वर्कशीट भी हम देते हैं, वो भी तुमने कंप्लीट किया जाता है. वो सब सर सब कंप्लीट कराना है हमने. ये भी हमारा 4 वीक वाला कोर्स था, तो हमारे को सर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस और करनी होगी. 4th week. 4th week में That was a very big advantage these guys got. 4th week. So initially we had a 4th week option, right? So he was one of those. तो हमने कहा जो 4th week आना चाहता है, तो उसमें तकरीबन क्लास में से 25 या 30 बच्चे रुके थे 4th week के लिए. उसके लिए एडिशनल सेट्स हमने प्रैक्टिस कराए थे और काफ़ी बेनिफिट था. अभी फिर कभी टाइम मिलेगा तो एक 4th week का भी हम चलाएंगे. सर प्रिपरेशन शुड बी लाइक सर, आप अपनी प्रिपरेशन पे एकदम कॉन्फिडेंट होना चाहिए. आप अगर एसएसबी के अंदर जा रहे हो तो एवरीथिंग एवरी स्टेप ऑफ यू शुड बी प्लान्ड. ऐसा नहीं कि कुछ भी आप लक बेसिस पे कुछ नहीं होना चाहिए. कुछ भी हो गया तो इट वाज माय लक, ऐसा नहीं होना चाहिए. हर एक स्टेप आप ले रहे हो, हर एक अगर आप जीडी के अंदर बोल भी रहे हो तो अच्छा खासा सोच समझ के बोलना पड़ेगा. स्पेशली इंटरव्यू में बोलना होता है. आप ऐसे नहीं आपने कुछ उसने मिसाइल के नाम पूछे इंटरव्यू ऑफिसर ने, आपने बोल दिया कि पृथ्वी और अग्नि मिसाइल्स के नाम ले दिए, पर आपको उसके आगे पता ही नहीं कि पृथ्वी के कितने वेरिएंट्स हैं, अग्नि के कितने वेरिएंट्स हैं, उसका नेवी वेरिएंट को क्या कहते हैं, कहाँ से चालू हुआ था, ये सब आपको पता होना चाहिए तभी आप बोलो. या फिर आप फिर उस चीज़ पे लेके मत जाओ इंटरव्यूअर को, क्योंकि फिर वो आपके लिए नेगेटिव जाएगी.
इसलिए तो जो आप करो हर एक चीज़ प्लान होनी चाहिए, हर एक स्टेप आपका प्लान होना चाहिए। ये चीज़ आपकी GOR वगैरह हर एक चीज़ में बहुत काम देंगी। अगर आप हर चीज़ प्लान करके चलोगे आपकी टीम के साथ में, आप अगर आगे भी चल रहे हो तो आप हर एक स्टेप अपना कि हाँ कितना ज़ोर से हमारे को वो लगाना है, अपना वॉर जो बनाते हैं हमारा सर, मैं सर हार्डकोर वैसा राजरिक वाला सर, राजरिक जाना तो हम सर राजा रामचंद्र की जय लगा दिया था। हम सर जो से राजा रामचंद्र की जय चिल्ला रहे हैं सर, अजीब से सर ब्लैकआउट हो रहे हैं पर कोई बात नहीं, आगे कूद रहे हैं, भाग रहे हैं, जोर से चिल्ला रहे हैं। सर ऐसा था कि थोड़ी देर चिल्लाना है, थोड़ी देर करना है, पर पूरा जोर लगा के करना है। कहीं पे भी आपको करे बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा सा और कर लेता तो ये हो जाता, थोड़ा सा और, क्योंकि 0 टाइम पे आपको सेकंड चांस नहीं मिलने वाला। आपको यहाँ पे फिर भी एक चांस और मिल जाएगा, आपको एक सेट और प्रैक्टिस हो जाएगा, आपकी स्टोरी का एक सेट और प्रैक्टिस हो जाएगा। स्टोरी में भर के एक्शन डालो, भर के चीज़ें डालो कि उसने उनने जो भी आपका हीरो है उसको एम्पावर करो, कि उसके एक्शन अच्छे लिखो, एम एक डिसाइड कर दो, उसको अचीव करने के लिए खूब सारे अच्छे एक्शन डालो। ऐसे नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल बस गया करा और हो गया, तो वो आपकी थिंकिंग दिखाएगा अच्छी बड़ी, वैसा करना। Anybody wants to ask any questions? एक हफ्ते बाद एकेडमी में होगा, फिर नहीं आ सकते। No questions? Thank you so much, Mantavir, coming all the way, motivating them.